Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare. There's something to go behind it. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Guru Namaste, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Ram Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hey, no, 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 wrong, wrong, no, 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 wrong, wrong, yes. Hare Krishna, Hare Krishna, wrong, wrong, Hare Ram, 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 Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Vasudeva Gaura Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Ram 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, 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 Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna गाने कर रहे हैं अरे अरे कुछ निकल आता है थोड़ा दूर है नहीं होता कभी हाँ खाना बैठा है होगा मैं बड़े बार लगे ठीक है तू चल रहा और हाँ मीटअप में जाना है थोड़ा देर थोड़े टाइम बोलना अपन अब जा 5 दफा बोलो
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Radharani, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Chaitanya Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Yes, Ram Ram Hare Hare Krishna Hare
Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna, What is it? Krishna,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वंदे कृष्ण श्री गुरु नरसिंह
राम 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 राम। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। अब लोग शिष्य प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज काफी लंबे समय बाद हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भक्तों में से एक, वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक, श्रीमान केशव प्रभु उपस्थित है, जो कि मूलतः पूना में रहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम हमारे परिवार के वो भक्त हैं जिन्हें शायद परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 20 से अधिक वर्षों से पूना में प्रत्येक वर्ष गुरु महाराज जी की भगवत कथा जो ऑर्गेनाइज होती है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन केशव प्रभु प्राय करते हैं। और अभी अभी साथ ही में हड़पसर में एक प्रीचिंग सेंटर की भी स्थापना हुई है। प्रभु जी उसके भी इंचार्ज है। और साथ ही में कई मंदिरों के, हमारे एमपीएम जोन के कई मंदिरों के अध्यक्ष के रूप में भी प्रभु जी ने पूर्व में कई महत्वपूर्ण सेवाएं, जिम्मेदारियां निभाई है। प्रभु जी और उनके साथ उनका पूरा परिवार गुरु महाराज जी की सेवाओं में दिन रात लगे रहते हैं। केशव प्रभु जी गुरु महाराज जी के उन शिष्यों में से, उन भक्तों में से एक है जिनको कभी भी कोई भी सेवा के लिए अप्रोच किया जाता है तो उनके मुंह से ना नहीं निकलता है। जैसे कहते हैं प्राय ब्रह्मचारी भक्तों के लिए, जो गुरु ब्रह्मचारी भक्तों को, शिष्यों को कहते हैं कोई सेवा है, वो कहते हैं यस सर। तो केशव प्रभु गृहस्थ होते हुए भी हमारे वैसे गुरु भाई है जो केवल यस गुरु महाराज कहते हैं। इज लाइक अ यस मैन फॉर आवर गुरु महाराज। तो हमारा परम सौभाग्य आज प्रभु जी का मुखारविंद से हम कुछ श्रवण करेंगे।
तो आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। और साथ ही साथ इस्कॉन पुणे राधा कुंज बिहारी मंदिर के टीएमसी के अध्यक्ष या सदस्य भी है, अध्यक्ष नहीं क्षमा कीजिए, लेकिन सदस्य भी है, एक प्रकार से अध्यक्ष ही है। और प्रभु जी के मुखारविंद से हम एक बार सुन रहे थे कि पूना में ऐसे भी दिन थे जब प्रभु जी केशव प्रभु अपने घर से मंगल आरती के लिए उठ के जाके पुजारी और मंदिर के भक्तों को जगाते थे कि भैया उठ जाओ, मंगल आरती का समय हो चुका है, भगवान को उठाना है। तो प्राचीन भक्त है श्रीमान केशव प्रभु, तो हमारा आज परम सौभाग्य है कि उनके मुख से हम श्रवण करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए केशव प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी चरणिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमकृतार्थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। सब भक्तों के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की अभिलाषा करते हुए गुरु महाराज की विशेष कृपा और उनके मार्गदर्शन अनुसार भक्ति को आगे बढ़ाते हुए कुछ विशेष लीलाओं का हम स्मरण चिंतन करेंगे। दो चार जगह से अलग अलग बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा, उनके द्वारा एक श्लोक को हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ
स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 50। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वैव वा भजन् मुकुन्द शरणं स्वस्ति मां स्याद्यथा वयम्। यदि देवता असुर या ब्रह्मांड के अंदर का कोई भी जीव मुक्तिदाता मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करता है तो हमारे भक्त प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों का भाजन होता है। तात्पर्य, भक्त प्रहलाद महाराज ने अपनी जागता उदाहरण देते हुए अपने मित्रों से अनुरोध किया कि वे भक्तिमय से रहें, चाहे कोई देव समाज का हो, असुर समाज का हो, मानव समाज का हो या गंधर्व समाज का हो, प्रत्येक जीव को मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सौभाग्य में परिपूर्ण बन जाना चाहिए। तो हमारा बड़ा ही भाग्य है कि गुरु महाराज के चरणों में बैठकर रोज सवेरे जप करने का हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक का प्रेम है वही चैतन्य महाप्रभु ने लेके आए हैं और कीर्तन सम्राट परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज उसी भाव के साथ उसी कीर्तन को हर जगह पहुंचाते हैं। कली महाराज कह रहे थे कि पृथ्वी आछेयति नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े सिटियों में देशों में मंदिरों की स्थापना की और गुरु महाराज ने पद यात्रा के द्वारा पूरे विश्व में 108 देशों में ये गौरांग महाप्रभु का संदेश, हरे कृष्ण मंत्र का संदेश नगर नगर ही नहीं उसके बीच में जितने भी गांव है वहां तक भी पहुंचाया है। तो ये हरि नाम का प्रचार महाराज ने किया है, वे विश्व में अद्वितीय है। महाराज के साथ हम यूरोप में थे तो महाराज वहां भी प्रवचनों में कह रहे थे कि किस प्रकार गुरु महाराज वहाँ जो रास्ते में लोग है उनको भी कीर्तन करते थे, खुद महाराज चलकर कीर्तन गाना पद यात्रा में, फिर उसके बाद वहाँ प्रवचन करना और उसके एंड में फिर से कीर्तन गाना। इस प्रकार सब प्रकार की सेवा के लिए गुरु महाराज समर्पित है। तो पूरे विश्व में ये गौरांग महाप्रभु का हरिनाम का प्रचार महाराज ने किया और उनके जप के द्वारा उनका जो करुण रस है, भगवान की जो पुकार है, वो पुकार इस झूम मंदिर के द्वारा हम भक्तों को अपने घर में ही मंदिरों में जहाँ भी है वह बैठकर हमें प्राप्त हो रही है। इसके लिए सब हमारे झूम मंदिर के पद्मवादी प्रभु कमेटी मेंबर दीनानुकंपा माता और जो भी इसमें है सबको हम धन्यवाद देते हैं और विशेष करके रमन कृष्ण प्रभु जो डेली सबके पहले उसको झूम को लगाते हैं। ये गुरु का प्रेम घर घर में हरिनाम के द्वारा पहुंच रहा है। तो हमें आज सेवा के बारे में है कि किस प्रकार हरिनाम लेने से हमें सेवा प्राप्त होती है। ऐसे कोई भी मंदिर में आता है, दर्शन करता है तो मंदिर अध्यक्ष या कमेटी उसको तुरंत सेवा नहीं देती। जब वो जप करता है कुछ दिनों के बाद वो और दृढ़ होता है, 4 नियमों का पालन करता है, फिर उससे सेवा दी जाती है। तो हमें जो भी ये सेवा मिल रही है ये हरिनाम की विशेष कृपा है। तो सेवा करने से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कल महाराज कर रहे थे, मंदिर निर्माण कार्य हमारा नागपुर में हो रहा है, पंढरपुर में हो रहा है, इचलकरंजी में हमारे गुरु महाराज के मार्गदर्शन में मंदिर बन रहा है, कई मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो ये सभी मंदिरों में
यदि हम अपनी सेवा अर्पण करेंगे तभी हम इस मंदिर को अपना कर सकेंगे। उसी प्रकार सेवा से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो जिन्होंने अपने प्राणों को भी, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, तो अपने प्राणों को भी बाजी लगाकर जिन्होंने भगवान की सेवा की, ऐसे अभी अभी राम कथाएं हुई है, उसमें हम देखते हैं कि जो पक्षी है जिसमें लड़ने की इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो रावण के साथ लड़ सके, परंतु जब नासिक से दंडकारण्य से सीता माता का हरण रावण उठा कर लेके जा रहा है, तब देखते हैं कि जटायु ने अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए अपनी जितनी शक्ति है उतनी लगाकर उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। युद्ध में उन्होंने अपनी इतनी शक्ति दिखाई कि रावण पराजित हो गया। फिर रावण ने अपनी शक्ति को जागृत किया, अपनी तलवार को उठाया और उस तलवार से उन्होंने उस जटायु पर नहीं तो उसके पंखों पर प्रहार किया। पक्षियों का प्राण उनके पंख है, जैसे उसके पंख कट गए उसको उड़ते नहीं आया और वो सभी प्रकार से घायल होकर नीचे गिर गया। गिरने के बाद उसका एक ही ध्यान, राम राम राम। भगवान कुछ ही दिनों में वहां पहुंचे। उन्होंने जटायु को देखा, उन्होंने उसको अपने पास गोद में उठाया, उस पर हाथ घुमाया, अपने गोदी में लेकर प्रभु का दर्शन करते हुए वो भगवान के धाम चला गया। उन्हें चतुर्भुज रूप की प्राप्ति हुई और वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते भगवान के धाम में पहुंच गया। ये भगवान की सेवा का लाभ है। हनुमान जी ने भी भगवान की विशेष सेवा की। सीता शोध, हम भी लोग शोध कर रहे हैं कि कैसे लक्ष्मी हमारे भू वैकुंठ के लिए आए, घर घर लोगों को मिलकर प्रचार करते हैं कि मदद कीजिए। उसी प्रकार हनुमान जी ने सीता का शोध रावण की चंगुल में जाकर करने की इच्छा हुई। वह समुद्र के किनारे पहुंच गए। बहुत लंबी कथा है मगर शॉर्ट में करते हैं। पहुंचते उनको अभी जाना है, सब लोगों ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूँ मगर वापिस आ नहीं सकता। जामवान जी ने हनुमान को प्रेरित किया कि आपका जन्म होते ही आपने फल खाने के लिए सूर्य को अपने मुख में धारण कर लिया है। आप सूर्य तक हजारों योजन जा सकते हो, तो 100 योजन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हनुमान ने सुना, उन्होंने अपना शरीर विस्तार किया, बहुत शरीर को बढ़ाया और उन्होंने छलांग लगाई भगवान की सेवा में। जब हम सेवा करते हैं कई विघ्न आते हैं, परंतु इस विघ्नों को हमें मात करके सेवा में आगे बढ़ना है। हनुमान जी जैसे निकले रास्ते में उनको सुविधा हो इसके लिए एक स्पेशल पर्वत थे मैनाक। उन्होंने कहा कि सब पर्वतों को पंख काटे गए परंतु आपके वायु की कृपा से उन्होंने मुझे समुद्र में रखा। दशरथ महाराज ने भी मेरी मदद की है। आप उन दशरथ के पुत्र के लिए, राम जी के लिए सेवा में जा रहे हैं, थोड़ा सा आप यहाँ विश्राम कीजिए। परंतु हनुमान जी ने कहा राम काम करने के लिए हमें कोई विश्राम नहीं है। उन्होंने उसे प्रणाम किया, स्पर्श किया और आगे बढ़े। जैसे वो आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ी राक्षस ने थी सिम्मिका, जो छाया, जिसकी छाया देखती थी और उसको पकड़ लेती थी। हनुमान जी उड़ रहे थे, उसने नीचे छाया देखा, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, मुंह में डाल दिया। हनुमान जी ने उसका सीना फाड़कर बाहर आ गए और उसका विनाश कर दिया। इस प्रकार हर परिस्थिति अविद्या है, आलस है, इससे हमें
हार कर इसको भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा आलसी जीवन ही है, इससे हम भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर देवताओं ने नाग माता सुरसा देवी को भेजा। सुरसा ने कहा कि यहाँ से जो भी जाता है वो मेरे मुख के अंदर जाता है। तो हनुमान जी ने अपना विस्तार किया 100 योजन, और उसने भी अपना मुख बड़ा किया, इतना मुख बड़ा कर दिया कि इससे उसका बड़ा मुख नहीं हो पा रहा था। तो जैसे हनुमान जी ने देखा कि अभी इसको मुंह बंद करने के लिए टाइम लगेगा, नाग माता है, इसको मारना नहीं है, उसके मुख में सूक्ष्म रूप में गए और तुरंत बाहर आ गए। देवताओं ने कहा कि हनुमान जी सिर्फ बलवान ही नहीं, बुद्धिमान भी है। एक बार महाराज एक भक्त को कह रहे थे कि हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य करना है, जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। हमें अत्यंत गंभीरता से इस कृष्ण भावना को आगे बढ़ाकर सेवा में लगना है। साथ में ही फिर वो आगे गए, तो जैसे लंका के द्वार पर पहुंचे, वहां एक लंकिनी करके थी। उस लंकिनी ने हनुमान जी को सूक्ष्म रूप में, अत्यंत छोटे रूप में वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, रे चोर, आप हमारे नगर के अंदर कैसे जा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, चोर मैं हूँ क्या तुम्हारा मालिक रावण है, जिन्होंने हमारी मैया सीता को चुरा कर यहाँ लाया है। सबसे बड़ा चोर तो वही है कि किसी की पत्नी को, माता साक्षात लक्ष्मी की, जानकी माता, उनको उन्होंने यहाँ पर लेके आया है चोरी करके, हरण करके। वो चोर है। सिंह को उन्होंने एक चपट मारा, रक्त की उल्टी होते होते वो वही गिर गई, और उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने सबको वर दिया, तब मुझे भी कहा था ये एक रामदूत आएगा बंदर के रूप में, हनुमान जी, और वो एक चापट मारेंगे और उससे समझ जाना कि इसके बाद लंका का विनाश पक्का है। तो इस प्रकार उसने याद दिलाई। हनुमान जी विभीषण के घर में पहुंचे, पूरे घर में राम राम लिखा हुआ है, और वो वहां जाकर विभीषण ने उनको बताया कि माता अशोक वाटिका में है। और फिर जाकर उन्होंने सीता का शोध लगाया, लंका को पूरी जला दिया अपनी अग्नि से, परंतु विभीषण का घर जला नहीं। तो इसी प्रकार भौतिक दुनिया का दुख बहुत है, परंतु जो भी भगवान के नाम का जप करते हैं उन्हें उस पर किसी प्रकार से दुख नहीं होती है। तो इस प्रकार हनुमान जी ने भी भगवान की सेवा की। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे पर होगी। कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि कई भक्तों ने भगवान की सेवा की। एक छोटी सी फल वाली, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, फल ले लो, करते करते नंद बाबा के आंगन में पहुंची। आंगन में पहुंचते उन्होंने रसीले फल, कृष्ण को देखकर इन फल खाने की इच्छा हुई। कृष्ण जी अत्यंत छोटे हैं, और वो अपने घुंघरू की आवाज से, बालक 2-3 साल के, उन्होंने अपने हाथ में गेहूं, चावल सब मुट्ठी भर भर कर उठाया और लेकर ठुमक ठुमक चलते चलते वो फल वाली के पास पहुंचे। तो बच्चे जब चलते हैं तो उसके हाथ से बहुत सारा गिर जाता है, थोड़े से दाने बचे थे, फल वाली को दिए। फल वाली ने कहा, इसकी जरूरी नहीं, प्रभु आपका दर्शन होगा बस। और जब फल लेना है, बच्चों को भी जब नोट देते हैं उसको परफेक्ट पकड़ लेते हैं। तो जो उनको चाहिए वो बराबर पकड़ते, नहीं चाहिए वो उनके हाथ से गिर जाता है। तो उन्होंने कई फलों को उठाकर अपने साथ लेकर चले, और जैसे भगवान जा रहे थे, फल वाली उनकी तरफ देख के आनंद से
बड़े प्रेम से उनका दर्शन कर रही थी, आंसू बहा रही थी। उसने कहा आज मैंने दुनिया का सब कुछ पा लिया। और जैसे वो अपने टोकरी को उठा कर लेके चल रही है तो टोकरी हेवी बन गई है, उठा नहीं पा रहे। उठ के देखा रहे इसमें क्या भरा है। जैसे उसने खोला, सब हीरे मानिक मोती फल सब सोने के हो गए। और इस प्रकार फिर उसको फल बेचने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। साधारण फल देने से भगवान इतनी कृपा करते हैं। तो जिन्होंने हमारे ब्रह्मचारियों ने जीवन दिया है, वो लोगों ने इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं, भगवान उन पर विशेष कृपा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद शबरी थी, जिन्होंने हर दिन राम जी की याद करती थी। फिर प्रभु मेरे घर आएंगे, अरे झोपड़ी के भाग भी खुल जाएंगे। वो आएंगे तो क्या करेंगे, मैं घर को बुहारूंगी, दीप लगाऊंगी और घर को सजाऊंगी और मीठे फल उनको खिलाऊंगी, झूले में बैठा कर उनके गुण गाऊंगी। तो जब शबरी का ये भाव, तो वो रोज डेली, ऐसा नहीं कि भगवान कब आएंगे तब आएंगे, डेली वो अपनी सेवा करती थी। और जैसे ही भगवान आए, उन्होंने उसके फल खाए और उसके बाद नवदा भक्ति की चर्चा हुई और शबरी भी भगवत धाम चली गई। केवट है, इसका तो बहुत ही विशेष वर्णन राम कथा में आता है कि इन्होंने जन्मों जन्मों से उसकी इच्छा है कि मैं भक्ति करूं। क्षीर सागर में एक कछुआ के रूप में एक कछुआ रहता था और उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं प्रभु के चरणों का स्पर्श करूं। वो धीरे 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 मेहनत करके भगवान के चरणों के पास जाता और जैसे ही चरणों के पास पहुंचता तो लक्ष्मी माता चरण दबाते हुए बोले कछुआ कहाँ से आ गया। शेष नाग की तरफ देखते, नाग ऐसे शेष जी ऐसे फुफकारा मारते कि वो कई दूर चला जाता। फिर भी वो अपना गंतव्य कभी भूलता नहीं। धीरे 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 वो बोले इधर से नहीं तो दर्शन तक पहुंच जाऊं। भगवान के मुखारविंद की तरफ पहुंचता, वहां से शेष फिर फुफकारे मारता, अपना प्रयत्न जारी रखा। भगवान ने देखा इधर से तो बात होने वाली नहीं, ये दोनों हमारे विशेष है, इनको हम कुछ बोल नहीं सकते। तो भगवान ने उनके मन की बात जानी और राम अवतार में ये केवट बन गया है। केवट के पास भगवान पहुंचे, प्रभु को जाना था गंगा के पार, प्रभु केवट की नाव चले। केवट के पास भगवान चले, उन्होंने कहा आपकी नाव से हमें इस गंगा से इस पार से उस पार करो। केवट कहता है प्रभु आपके पैरों में नहीं मगर आपके पैरों की ये जो धूल है ना, इसमें एक बहुत जादू है। जब ये धूल उस पत्थर पर गिर गई तो वो पत्थर देवी बन गई, अहिल्या बन गई। यदि ये नाव में यदि आपकी ये धूल लग जाती है और ये नाव यदि कोई स्त्री बन जाती है तो मैं कल क्या चलाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा। तो क्या करना है केवट बोलो। राम जी कहते हैं क्या करना है, बोले प्रभु आपके चरण हमें धोने। और केवट ने गंगा का जल लाकर अत्यंत प्रेम से कई घंटों तक भगवान के चरणों को स्पेशल धोया है। और इससे तो अपना जीवन तो पार करते हैं, परंतु भगवान के चरण धोने से उन्होंने अपने पितृ लोकों का उद्धार कर लिया। उन्होंने वो जल को लेकर अपने पूरे परिवार को पिलाया, खुद ने उससे अभिषेक किया, उसका पान किया। फिर भगवान को उन्होंने बैठाकर, लक्ष्मण देख रहे अरे क्यों इतने देर क्यों धो रहे। अरे प्रभु कुछ एक भी कण लग गया तो मेरी जो ये बोट है ये स्त्री बन जाएगी। एक तो स्त्री है, इसको संभालेगा कौन, और ये स्त्री बनने के बाद मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये दोनों प्रकार से केवट ने समझाया, उन्होंने अपने जीवन का परम गंतव्य प्राप्त कर लिया। भगवान ने उसकी सेवा से प्रसन्न हुई। वो बोट कभी नीचे लेके जाता है, कभी फिर से ऊपर लेके आता है। और इस प्रकार आखिर उन्होंने भगवान को गंगा को इससे उस पार पहुंचा दिया। जैसे भगवान ने उनकी सेवा देखी,
उनके मन में आया इन्हें कुछ देना चाहिए, तो सिर्फ भगवान ने सीता माता की ओर देखा। भगवान के पास कोई चीज नहीं थी, कोई जेब में कोई मोहरा नहीं थी, मगर सीता माता ने अपने स्पेशल रिंग निकाल कर राम जी को दी। तो भगवान उसे कुछ देना चाहते हैं। राम जी ने उनको रिंग, सोने की अंगूठी दी। केवट कहते हैं कि प्रभु, आपका और हमारा कार्य एक ही है। जैसे हमने इस पार से उस पार किया, वैसे आप भी मुझे इस भव सागर के चक्कर से मुक्त करके अपने धाम पहुंचा देना। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, और यदि कुछ देना ही चाहते हो तो आते टाइम एक ही है, मेरे बोट पर बैठकर आप फिर चले जाना। तो इस प्रकार केवट की जन्मों जन्मों की भक्ति पूर्ण होती है, उसकी भी ये सेवा भगवान ने स्वीकार की है। तो इस प्रकार भगवान हर एक जीव, वो छोटा हो, बड़ा हो या राजा हो, राजा हमारे पुरुषोत्तम देव जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, उनकी सेवा, जगन्नाथपुरी में एक ही राजा है जगन्नाथ, जो पूरे विश्व के राजा है। वो राजा भी है, वो महान सेवक है। ऐसा हमारे मोदी जी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं भगवान का प्रधान सेवक हूँ, इस देश का सेवक हूँ। तो उसी प्रकार हमारे राजा पुरुषोत्तम देव भगवान के आगे झाड़ू निकालते थे, और उनका विवाह एक राजपुत्री से हो गया। और उस राजपुत्री के स्पेशल मंत्री को उन्होंने राजा को भी बुलाया था, तो वो राजा नहीं आए तो उन्होंने मंत्रियों को भेजा कि हमारे जवाई किस प्रकार कार्य करते हैं, ये राजा कैसे सेवा करते हैं, देखिए। तो मंत्रियों का थोड़ा जरा फॉल्ट ढूंढना उनका काम ही होता है। तो उन्होंने फॉल्ट देखा कि अरे राजा इतना बड़ा होकर, पूरा सम्राट होकर, ये झाड़ू निकाल रहे हैं जगन्नाथ के आगे, ये भंगी का काम कर रहे हैं। हमारी राज रानी ये पद्मावती इस राजा को कैसे देंगे। तो फिर राजा ने प्रस्ताव भेजा, काशी नरेश, आपकी पुत्री पद्मावती से हमारा विवाह करना था, क्या हुआ। काशी नरेश कहते, आपका ये कार्य है ये अत्यंत नीच भंगी, जैसे हम आपके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। तो फिर राजा ने अपनी सेना के साथ उन पर युद्ध किया। पहली बार राजा ने युद्ध किया, पूरा काशी नरेश की सेना ने पुरुषोत्तम देव को हरा दिया। राजा बड़े दुखित होकर जगन्नाथ बलराज जी के पास आकर रोने लगे, प्रभु, आपकी सेवा मैंने की है, और आपकी खास कीर्ति के लिए मैंने ये युद्ध किया। मेरे पास तो हजारों रानियां, इसकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु आपकी सेवा का महत्व हमें बताने के लिए मैंने युद्ध किया है। प्रभु ने कहा, डरो मत, फिर से युद्ध करो। भगवान कहते हैं हमारा प्रयास कभी बंद नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में कहा, प्रयत्न वाळूचे कण न रगलता तेल ही गळे। तो प्रयत्न करने से यश हमेशा प्राप्त होता है। तो राजा ने कहा फिर से युद्ध करो। राजा को भगवान ने कहा युद्ध करो, और अभी आपके युद्ध में हम खुद आएंगे। कृष्ण और बलराम जी खुद इनके साथ युद्ध के लिए आगे बढ़े। राजा ने फिर से कहा कि भगवान हमारे साथ युद्ध में आने वाले हैं, और सभी जितने भी उत्कल वासी, पूरे हमारे उत्कल वासी उड़ीसा के सभी लोग इस युद्ध में जुड़ गए। सब ने अपने शौर्य वीर्य के साथ इस लड़ाई में भाग लेना चाहा। जब हम मंदिर में रहते हैं तो लोग आते हैं, परंतु जब कहते प्रभुपाद आने वाले हैं, गुरु महाराज आने वाले हैं, तो संख्या 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि महाराज आने वाले। फिर उन्होंने कहा भगवान आने वाले हैं, उत्सव में लोगों ने भाग लिया। भगवान खुद काले घोड़े पर, कृष्ण बलराम और सफेद घोड़े पर कृष्ण बैठकर चल रहे हैं। उन्होंने रास्ते में जगन्नाथपुरी से निकले,
वो सबसे आगे चले। चलते चलते उनको थोड़ी प्यास लगी। रास्ते में एक छाछ वाली माता वहां बैठी हुई थी। उन्होंने उनसे न सेनापतियों ने कहा कि हमें थोड़ा छाछ पिलाइए। वो कहा आइए। उन्होंने सोचा अच्छा गिराक आया है। उन्होंने उनको छाछ पिलाई। छाछ पीने के बाद उन्होंने कहा कुछ पैसा दो, अभी छाछ तो पी ली। जैसे होटल में जाते हैं तो पहले ऑर्डर बिल आता है और फिर खाने के बाद ऑर्डर पेपर आता है और खाने के बाद बिल आता है। तो छाछ पीने के बाद उन्होंने कहा पैसा दो। बोले हम सैनिक है, हमारे पास क्या है। बोले हमारे राजा आएंगे ना पीछे से, वो आपको कुछ देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि राजा आएंगे तो उन्होंने कहा वो उसको कैसे पता चलेगा आप उनके सैनिक है। भगवान ने अपनी जो पेशन मुद्रिका है, अंगूठी है हाथ की, उन्होंने निकाल कर उनको दी। भगवान आगे बढ़े, राजा पीछे से आए। इस मुनिमा ने कहा कि राजा आपके सैनिकों ने हमारी छाछ पी है, आप उसका बिल दीजिए। उन्होंने कहा कौन से सैनिक? सब तो सैनिक हमारे साथ है, हमारे आगे कोई नहीं गया। फिर उन्होंने वो अंगूठी दिखाई। देखो ये अंगूठी देख जानते हो क्या? अरे राजा ने कहा ये तो हमारे साक्षात जगन्नाथ की अंगूठी को हम पहनाते हैं, ये भगवान की अंगूठी है। उसने कहा आपने छाछ पिलाई है, आपको अभी पूरे जीवन कभी काम नहीं, पूरा ये जो राज्य है ये सब आपका मणि का पट्टन बना दिया, उसी का नाम भी दे दिया। पूरा पट्टा राजा ने उनको दे दिया कि प्रभु को आपने छाछ पिलाई है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी यात्रा में चल रहे थे और उनको एक भक्तों ने गोपाल कृष्ण महाराज कहते लस्सी पिलाई, कुछ लोग कहते छाछ पिलाई। तो जैसे भी महाप्रभु ने कहा आगे हमारे लोग आएंगे ना वो पैसा देंगे। सभी यात्रियों को पूछते पैसा दो, मगर यात्री कहते यात्रा चल रही है, जैसे आप यात्रा में कितना भी पैसा लेके जाओ पूरा समाप्त हो जाता है। वो कहा यात्रा कई दिनों से चल रही, पैसा एंड हो गया। आखिर उस छाछ वाले ने सोचा कि प्रभु ने इतने लोग इनके पीछे सेवा कर रहे हैं, एक दिन मैंने छाछ पिलाई दी तो क्या हो गया। और जैसे उसके मन में आया ये मेरी प्रभु की सेवा हो गई, तो उसकी जो मटकी है वो उठा रहा है धोने के लिए, उठका रही है। तब वो हेरे पानी मोतियों से भर गई। चैतन्य भागवत में मधुर कथा है, सेवा करने से लाभ होता है। तो सेवा कीजिए, प्रभु की सेवा से दिव्य आनंद प्राप्त होता है। राजा ने चढ़ाई की और फिर उसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त की। पद्मावती को लेकर आए। राजा ने कहा इसको किसी भंगी के साथ विवाह कर दो। और पुरुषोत्तम देव का मंत्री बड़ा होशियार था, उसने एक साल तक वेटिंग किया। और जब राजा फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे झाड़ू निकाल रहा था, तब मंत्री ने आकर कहा प्रभु मैंने कई भंगियों को देखा मगर आपसे अच्छा कोई भंगी नहीं है। और इस प्रकार पुरुषोत्तम देव और पद्मावती का विवाह हुआ। तो ये कथाओं को सुनकर हमें एक ही प्राप्त होता है कि भगवान की सेवा करने से उसी चीज की कमी नहीं है। आप भी भगवान की सेवा में लग जाइए। और ये हम नहीं, हमारे महान आचार्य प्रहलाद प्रहलाद महाराज कर रहे हैं कि देवता रहो, मनुष्य रहो, यक्ष रहो, गंधर्व रहो, भजन मुकुंद चरणम, मुकुंद के चरणों का जिन्होंने भजन किया है स्वस्ति। स्वस्ति का आपने कभी देखा है? उसमें प्लस होता है, वो कभी माइनस नहीं होगा। जो भी सेवा करेंगे स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम, उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होने वाला है। और सर्वश्रेष्ठ कल्याण ये स्वस्ति स्वस्ति होगा। स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की इन शिक्षाओं से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवाओं में
लगना चाहिए। तो भगवान राम, अब भक्त कहिए राम। ये राम हमारा भगवान के लिए स्पेशल प्रार्थनाएं है। जब हम 2 बार राम कहते हैं, एक बार राम बोलेंगे भगवान को संबोधन है राम, 2 बार बोलेंगे महाराष्ट्र में कहते हैं राम राम, तो ये अभिवादन होता है। भगवान राम अभिवादन राम राम। और कभी थोड़ा कुछ संवेदना होती है, अरे रे रे इसका बहुत बुरा हुआ, राम राम राम, अरे अच्छी बात नहीं है। तो ये संवेदना है। एक राम राम अभिवादन है, और जब 3 बार करते हैं राम राम संवेदना है। और जब बार बार करते हैं राम 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 राम, ये कीर्तन है। तो इस प्रकार राम का नाम ही सब कुछ है। ऐसे वृंदावन में जाते हैं, एक ही मंत्र है राधे राधे। कोई भी आता है राधे राधे, यदि किसी को बाजू में भी करना है थोड़ा जोर से बोलता है राधे राधे राधे, हो जा भाई बाजू में हो जा, अभी हमारी गाड़ी चल रही, रिक्शा वाले आवाज देते राधे। तो इस प्रकार राधा नाम से ही लोग सब करते हैं। तो इस प्रकार राधा का नाम ही सबको आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान राम के 2 व्रत है। एक तो है पत्नी व्रत, वो एक पत्नी को छोड़कर किसी के साथ विवाह नहीं किया। और दूसरा उनका व्रत है सुकृत एव प्रपन्नाय तव स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तत्व्रतम। जो भी उनके शरणों में जाता है, जो भी उनकी सेवा में लग जाता है, तो उसके वो हर प्रकार से रक्षा करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। तो सबसे बड़ा भय है जन्म मृत्यु का चक्कर, तो इससे वो मुक्त करके अपने साकेत धाम में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम का जप करना हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। तो हमें नाम जप करते हुए कई विचारों को मन में न रखते हुए एक ही विचार रखना चाहिए कि प्रभु आज हम आपका नाम जप कर रहे हैं, अभी हम जप ही करेंगे। इसमें हमारा प्रेम बढ़ते जाए। इस नाम जप करते हुए हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे एक महात्मा प्रभु हमारे इस्कॉन के बड़े प्रसिद्ध है, तो एक छोटा सा एक किताब है जप संजीवनी। इसमें 20 अलग अलग संजीवनी को उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम इस नाम को जप करने से विशेष भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अभी समय कम है, हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे, आप सुनने की कोशिश कीजिए 2-5 मिनट में जितना हो सके उतना। आगे यदि कुछ भक्तों की कृपा हुई तो हम इसको विस्तार से श्रवण करेंगे। तो पहला है संजीवनी का मंत्र। मैं हर मंत्र सत्र में पवित्र नामों का प्रसन्नता और उत्साह से स्वागत करता हूँ। अब जब हम जप करते हैं तो हमें अत्यंत उत्साहित होना चाहिए। स्वच्छ कपड़े, बैठने का आसन स्वच्छ होना चाहिए, मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये नाम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस पवित्र नाम को प्रसन्नता और उत्साह से, आप गुरु महाराज को देखते हैं कि कभी कभी वो विरह में जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी प्रसन्नता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हर समय उत्साह है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब जप में गुरु महाराज हाजिर नहीं। कल स्वास्थ्य कम ज्यादा रहते हुए भी महाराज वो शाल ओढ़कर भी हमारे नागपुर भक्तों के लिए विशेष प्रवचन कर रहे थे। तो हमें हरिनाम का स्वागत करना है। मैं दूसरी है, मैं सरलता से
मन केंद्रित करते हुए और ध्यान पूर्वक अपनी निर्धारित संख्या में जप करता हूँ। हमें निर्धारित संख्या में और सरलता से, कपट नहीं। हमारे भक्ति प्रेम महाराज कह रहे थे कि मन में कपट तभी आता है जब आदमी कोई पोस्ट या कोई महत्वाकांक्षा रखता है। पर यदि सरल व्यक्ति है तो उसके मन में कोई कपट का भाव ही नहीं। उसका एक ही कार्य, मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं। फिर उसके मन में कोई टेंशन नहीं है। हमें मन को केंद्रित करते हुए सरलता से ध्यान पूर्वक अपने निर्धारित संख्या में जप करना चाहिए। तो निर्धारित संख्या हमारी 16 माला जप है, इसको हमें अत्यंत ध्यान पूर्वक करना है। जब मैं जप करता हूँ तो मैं सिर्फ जप ही करता हूँ। जप करते हुए मैं अपना सेल फोन नहीं देखूंगा। ये 11वां अपराध है। दूसरे शब्दों में जब हम नाम जप करते हैं तो हमें कुछ और नहीं करना है। कुछ लोग पेपर रखते हैं, पढ़ते पढ़ते जप करते हैं। आज की ताजा खबर क्या है, मोबाइल देखते देखते जप करते हैं। नहीं, उस कंप्यूटर लगा देते हैं, जब कोई प्रवचन सुनते सुनते जप करते हैं, तो ये एक अपराध का भाव है। जप करते हुए कोई किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए, यह या वह नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हमें पवित्र स्थान में बैठकर जप करता हूँ तो मैं जप करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, और मैं सेवा करता हूँ तो सेवा करता हूँ। जब हम जप करते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह अपने जप के अधीन हो जाए, न किसी और वस्तु के, चाहे वो भारी हो या अंदर से हमारा मन किसी वस्तु का स्मरण करता हो। हमें इन सबसे बचना चाहिए। मुझे नाम जप करना है, मैं नाम जप करना चाहता हूँ। आप तो सब चाहते तभी इतने सवेरे उठते हो। तो हमें नाम जप करते हुए इसमें प्रेम होना चाहिए। ये बात भगवान भी 10-10 भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में करते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगमत्वम येन मापयांति ते। भगवान कहते कि जो मेरा प्रेम से जप करता है प्रीति पूर्वक, तो उसे मैं ददामि बुद्धि योग, उसे ऐसा बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे धाम में आ जाएगा। येन माप उपयांति ते। तो ये बड़ा ही विशेष है। तो आप भी जप करते हुए प्रेम से जप कीजिए, जिससे आपका जप और अधिक होगा। हमें सुनना ही नहीं है, हमें देखना है कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो अभी हमारे 4 हो गए, एक और पढ़ेंगे, फिर आगे के 15 अगले कभी सत्र में समय मिला तो जरूर करेंगे। पवित्र नाम के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? यदि हम इसको ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा? आप सोच के सोचो, यदि हम नाम जप नहीं करते उस दिन हमें कैसे लगता है? ये अत्यंत भयानक है। नाम जप हृदय से हमें करना है, पवित्र नामों की सराहना करनी है। एक भक्त ने कल अच्छा कहा कि कृष्ण कहते हरे, हे राधे, हरे, राधे कहते कृष्ण, फिर कृष्ण फिर से कहते हरे, फिर राधे फिर से कहती है कृष्ण, फिर राधे फिर से कहती है कृष्ण कृष्ण, फिर कृष्ण कहते हैं हरे हरे। तो ये राधा कृष्ण का संवाद है, ये हमारा भगवान के प्रति समर्पण है। हमें हर दिन जप करते हुए सोचना है प्रभु मेरे साथ खड़े हैं, और ये जब मैं उन्हें सुना रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ बैठे हुए हैं। और ऐसे नहीं कि मेरा स्पीकर बंद है तो वो सुनते नहीं है, वो उस जप को सुनते हैं। जैसे उनके हजारों कान है, तो हर चीज भगवान गुरु महाराज देखते हैं, सुनते हैं। और कभी उनके मन में आ गया
वो बोलते भी है, अरे ठीक बैठिए, सो मत, जागते रहो। ये गुरु की हमारे पर विशेष कृपा है। किसी ने हमें विवश नहीं किया है, हमने ये स्वेच्छा से स्वीकार किया है। हमने गुरु के सामने प्रतिज्ञा ली है कि हम डेली 16 माला का जप करेंगे। तो इसे हमें बहुत ही गंभीरता से जप करते हुए आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो इसे और उत्साह के साथ प्रेम से कीजिए और दिव्य आनंद को प्राप्त कीजिए। जब आप प्रेम से और आनंद से करते रहिए, इसमें हमें आत्मा में रममान होना है। जब आत्मा इस जप को सुनता है तो महात्मा बनता है। तो इसलिए हमें इस जप को सुनना चाहिए। तो आगे के जो अभी हमने 4 देखे हैं, 16 और है, तो इसको हम और कभी आगे इसका हम जान पालन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो भगवान की सेवाओं में लगे रहिए। नाम जप करना ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे पुराणों में है। अत कृष्णादि नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान को हम अपने ग्राह्य इंद्रिय से नहीं जान सकते। सेवन उन्मुखे ही जीवादो। जीव से सेवा करना, स्वयमेव स्फुरत्य। भगवान प्रकट हो जाएंगे। जीव से क्या सेवा है? दो ही सेवा है, नाम उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा है प्रसाद खाना। तो भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ मत खाइए और हमेशा ही जीभ से बोलना ही है तो भगवान का नाम लीजिए। जो इस जीभ के हंसनी से भगवान का नाम लेता है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी ने भी कई जगह बताई है, उसका भी कुछ एक क्लास हो सकता है कि भगवान हमारे घर कैसे रहेंगे, भक्त के हृदय में, कौन से भक्तों के हृदय में रहेंगे। ऐसे 25-30 भक्तों का, जगहों का वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। तो इसको भी हम कभी समय मिला तो सुनेंगे, आनंद लेंगे। हमारे अत्यंत प्रिय पद्ममाली प्रभु, रमन कृष्ण प्रभु और गुरु महाराज की विशेष अनुकंपा से हमने जो कुछ कहा है भक्तों का, उनके आशीर्वाद से बोलने का प्रयास है। नहीं सकते, हमारे बड़े बड़े भाई स्पेशल प्रवचन देते हैं। वो हमारे हनुमान जैसे, घार जैसे आकाश ऊपर वो की सेवा कर रहे हैं। छोटी चीटियों का प्रयास है। जो भी सेवा की आपको अच्छा लगा तो कृपा बनाए रखिए, जिससे सेवा हम जीवन भर आगे भी कर सकते हैं। और आपके आशीर्वाद के बिना ये करना मुश्किल है। तो कृपा करके वैष्णव भक्त, गुरु महाराज और हमारे अथॉरिटी, इन सबको हम प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण मंत्र के साथ यही रुक जाते हैं, पानी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद।